السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت کی ازلی برکات ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ شامیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ نے قبولیت کو جمع کر دیا۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، جیسے فرمایا یہ لفظ پڑھیں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بول ہے۔ فرمایا یہ شام، آج کی شام، یہ رات شب جمعہ ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات ایسی ہے اس میں جو مانگیں قبول ہوتا ہے، جو مانگیں ملتا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جیسے جمعے کا دن ہے، جو مانگیں ملے، جو مانگیں قبول ہو۔ 11 اور 12 کی یہ جو درمیانی رات ہے رمضان کی، یہ صدیوں سے آزمودہ رات ہے، اور صدیوں سے اس رات میں کچھ قبولیت کے لمحات ایسے ہیں جو نسلوں کے لیے اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ دیکھیں کچھ لمحے ایسے رزق کے لیے ہوتے ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ دعا پڑھیں قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ عمل کریں مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو 11 اور 12 کی درمیانی رات ہے جو آج ہے، اس رات میں اللہ پاک جل شانہ نے کوئی خاص کوئی عطا رکھی ہے اولاد کے بخت کے لیے، نصیب کے لیے اور مقدر کے لیے۔ بخت کے لیے، نصیب کے لیے، مقدر کے لیے۔ مجھے وہ گھر یاد ہے اچھی طرح سے، وہ نواب کا وزیر تھا اور نوابی دور تھا، اور وہ دور جب نواب ہوتے تھے۔ اس کی بہت بڑی حویلی تھی، بہت بڑا گھر تھا، بہت بڑی حویلی تھی۔ شاید اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اولاد کے بخت اور نصیب کے لیے نہ مانگا، اس نے اپنے لیے سب کچھ مانگا، اور یوں اس کی آنکھیں بند ہوئیں، یوں آنکھیں بند ہوئیں، اور پھر بخت بھی گیا، نصیب بھی گیا، مقدر بھی گیا، رزق بھی گیا، راحت بھی گئی، آرام بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اس بندہ خدا نے 11 اور 12 کی رات کو کیش نہیں کیا تھا، نسلیں عیش نہ کر سکیں، نسلوں کے مقدر اور بخت نصیب نہ بن سکے، بخت اور نصیب نہ بن سکے۔ اور بیٹے اپنی دنیا میں ایک چہتی بیٹی تھی، میں چھوٹا سا تھا، میں نے اس کا کفن دیکھا، اور اس کا کفن آخری درجے کا گھٹیا کپڑا تھا۔ اس کا کفن وہ تھا کیونکہ گھر میں غربت تھی، اور میرا گمان یہ ہے کفن بھی وہ نہیں دے سکے تھے، تو میں نے مل جل کے کفن کی ترتیب بنائی تھی۔ چہتی بیٹی، ایک چہتی بیٹی، اور 2 بیٹے تھے، اور غربت ایسی آ گئی کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک دفعہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے دیکھا کہ یہ ڈیوڑی ہے، اس پہ بڑے بڑے موٹے گارڈر لگے ہیں لوہے کے، ان گارڈروں کو نہ بیچ دیا جائے۔ بندے کو لے آئے، کہنے لگے چھت کو توڑ دے، گرا دے، گارڈر لے جا، بول کتنے پیسے دیں گے۔
उसने आधी नहीं चौथाई कीमत कहा, इतने दूंगा। कहा इधर ले पैसे दे, आज की रोटी हो जाए कल देखा जाएगा। मैंने वो डेवरी गिरी, गार्डर गिरे और वो सारा सुनसान जगह देखी है। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान के पास ओहदा, माल, चीजें, दौलत, मुकद्दर, सब कुछ, लेकिन बख्त और नसीब और मुकद्दर नहीं होता। फिर नस्लों में फक्र, फाका और गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है। नस्लों में फक्र, फाका, गुर्बत छोड़ के कूच कर जाता है और यूं चला जाता है और बिसात समेट के चला जाता है। मेरा अल्लाह हर साल मौका देता है 11 और 12 की रात को, आ जाओ मेरे बंदे, मेरी रहमत मौजू पे है, तुम्हें सहूलत है रिस्क की, तुम्हारे पास सहूलत है सवारियों की, तुम्हारे पास सहूलत है घर की और छत की, तुम्हारे पास सहूलत है लिबास की और अच्छी नेमतों की। मेरे बंदे मुझे ये बता दो, तुम्हारी जिंदगी में यह सहूलत रहेगी या तुम्हारी जिंदगी में मैं तुम्हें फक्र और गुर्बत दिखा दूंगा और तंगदस्ती दिखा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मैं मंगता कर दूंगा। 100 रुपए का नोट था, 100 रुपए का बड़ा नोट होता था, लाल बड़ा नोट 100 रुपए का बंद हो गया। उसी नोट में वो सिगरेट पीता था, उसी नोट में, उसी नोट के अंदर सिगरेट को लपेटता था और नोट साथ जलता था और 100 रुपए के नोट के साथ सिगरेट पीता था। मैंने खुद देखा, मुझसे दवाई लेने आता था तो नोट ऐसे निकलता था। क्यों? बाप की जायदाद बेचता रहा, बेचता रहा, बेचता रहा, एक ही बेटा था, बेचता रहा। क्यों? बाप ने माल बनाया था, जायदाद बनाई थी, उसके लिए ऊंट, उसके लिए गायें, उसके लिए भैंसें, उसके लिए बाड़े, उसके लिए कोठियां, उसके लिए घर। एक जो बेटा था उसके लिए जमीनें, नौकर छोड़ के बाप गया और बाप खुश गया कि बेटा मैं तुझे बख्त दे के जा रहा हूं, दौलत दे के जा रहा हूं, माल दे के जा रहा हूं। लेकिन नहीं, बाप ने उसको दौलत दी थी, माल दिया था, बख्त नहीं दिया था, बख्त नहीं दिया था। 100 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीते मैंने देखा उसको। नोट साथ जल जाता था, लोग हैरान होते थे। उस दौर में जब 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे, 1 रुपए के 16 सिगरेट आते थे अच्छी ब्रांड के, वो उस 100 रुपए के नोट में सिगरेट पीता था। फिर सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक वक्त देखा कि उसने बाजू पे जख्म किए हुए थे, इधर भी इधर भी, और कहता था लोगों आना दे दो। और लोग उसके जख्मी जिस्म को देख के, जिसमें पीप बहती थी, जिसमें खून बहता था, उसको आना दे देते थे। एक फर्शी वंड है, एक फर्शी तकसीम है, एक अर्शी तकसीम है। हम फर्शी तकसीम पे मुतमईन हो जाते हैं, ये इस बेटे का हिस्सा, ये मेरा मर्जी, ये उसका हिस्सा, ये मेरे बुढ़ापा, ये मेरी जिंदगी, ये उसका हिस्सा, ये हम तकसीम कर देते हैं। लेकिन ये हमारी तकसीम बाज़ औक़ात अर्शी निज़ाम के मुआफ़िक नहीं होती, मुखालिफ होती है। अर्श वाला कहता है ठहर जा, तूने इसके लिए सब कुछ मांगा, बख्त मुकद्दर नसीब नहीं मांगा, वो मेरे पास है। फिर मैं या तेरी जिंदगी में या तेरी जिंदगी के बाद मैं इसे जलील ख्वार मंगता करके दिखाऊंगा। अंदरून सिंध की बात है कि उसने बेटियों की शादियां ना की, और सिर्फ इसलिए ना की कि जायदाद तकसीम हो जाएगी, मेरी दौलत, मेरा माल, मेरी जमीनें किसी और के पास चली जाएंगी, बेटियों की शादी होगी, दामाद हिस्सा मांगेंगे या बेटियां हिस्सा मांगेंगी, नामी मांगे मुझे देनी पड़ेगी।
शादियां ना की, शादियां ना की। बाप का आखिरी वक्त आया, बाप का आखिरी वक्त आया, मौत की कशमकश थी। बाप से कहा, अब्बा सारी उम्र आपकी खिदमत करती रही, आज हमारे लिए एक दुआ कर दो, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कह दें। बाप ने कहा, बेटा मेरा आखिरी वक्त है, आप खिदमत करते रहे, आप आम दुआ करो, आमीन कहें। बेटियों ने मिल के दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे बाप को जहन्नम दे दे। बाप ने कहा आमीन और मर गया। और फिर बेटियां जाती थीं, रोज बाप की कब्र पे लानते मार के आती थीं। एक दफा झगड़ा हो गया, जिसने देखा मुझे उसने बताया, मोतबर आदमी ने कहा झगड़ा हो गया, ये क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारा बाप है, तुम्हारा क्या ताल्लुक है? सब कुछ पाया, सब मेहनत की, पर इन रातों में, इन लम्हों में, जिन रातों में कायनात के राज मिलने हैं, जिन रातों में कायनात के मुकद्दर बटने हैं, जिन लम्हों में अल्लाह का ताल्लुक नसीब होना है, और जिस वक्त में उसका फैजान और करम अर्शों से फर्शों पे आना है, वो भूल गए, वो भूल गए। आज भी कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात का कोई पता नहीं। कितने लोग हैं जिनको 11 और 12 की रात की कोई खबर नहीं। कितने लोग हैं और जिनको 11 और 12 की रात का कोई एहसास नहीं है। इस रात की ताकत क्या है, ये मैंने नहीं बनाई। मुस्तनद किताबों में मुहद्दिसीन फुक़हा ने सदियों से इस रात के अमल की ताकत, इस रात के अमल की तासीर और इस रात का अमल का आजमूदा होना ये सदियों से चला आ रहा। इस फकीर को अल्लाह ने तौफीक दी, उस भूली बुसरी कहानी को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने खुद नहीं बनाई, वो भूली जो कहानी थी, वो भूला किस्सा था, वो भूला निजाम था, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश की कि उम्मत और इंसानियत को खैर मिले, उम्मत और इंसानियत को नफा मिले, अल्लाह की मखलूक को फैजान और बरकत के दरवाजे खोलें। वरना सच पूछें, गर्दिश अय्याम जो आज महंगाई है, आज से 2-4 साल पहले किसी ने नहीं सोची थी, और उसके आगे क्या होना है और क्या होना है, कहां तक हम जाएंगे, कहां तक हम पहुंचेंगे, उससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी, हालात कैसे गुजरेंगे, कोई खबर नहीं। पर जिसके लिए अरशों से फैसले हो चुके हैं ना, जिससे के लिए गैबी निजाम अरशों से बन चुका है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसका अल्लाह है और अल्लाह कफील भी है, वकील भी है, हाफिज भी है, हफीज भी है, नासिर भी है, नसीर भी है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कहत का जमाना था, लोग मुट्ठी मुट्ठी गंदम और जौ को तरस रहे थे। मैंने एक बांदी को देखा, गुनगुनाती हुई गली में जा रही है, उसके चेहरे पे कोई फक्र, गुर्बत, तंगदस्ती का कोई एहसास नहीं है। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, लोग भूखे मर रहे हैं, तू गुनगुनाती हुई जा रही है, तुझे कोई एहसास नहीं। कहा, जवाब सुने, कहा, मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं, मुझे क्या परेशानी है, मुझे कौन सा खौफ है, मुझे क्या गम है। मेरे आका के पास गल्ले के गोदाम और कोठे भरे हुए हैं। कहा, मैं सुन के हैरान हुआ, इसको अपने आका पे इतना यकीन है, मुझे तो अपने आका पे इतना यकीन नहीं है। इसका आका वो है, एक बंदा है जिसको मौत है, और मेरा आका वो है, एक रब है जो मौत से पाक, फना से पाक, जवाल से पाक, भूख से पाक है। उसके पास अता ही अता है, उसके पास इज्जत ही इज्जत है, उसके पास वकार ही वकार है, उसके पास शानो शौकत ही शानो शौकत है। मेरा आका तो वो है, मेरा आका तो वो है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हम अभी छोटे छोटे थे तो 11 और 12 की रात को हम बहन भाइयों को हमारे वालिद कहते थे, ये नफिल वाला अमल करने। कितने नफिल पढ़ने हैं? 12।
ये पढ़ लें। कहा कि मेरी एक बहन पढ़ती थी, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। वालिदैन पढ़ते थे, दुआ करते थे, बाकी कोई नहीं पढ़ता था। उम्र बड़ी हुई, रिश्तों की तरतीबें बनी, रिश्तों का निजाम बना। वो जो मेरी बहन जो नफल पढ़ती थी, उसके लिए एक गरीब का रिश्ता आया। मां कहने लगी, बेटी नफल तू ही पढ़ती थी और रिश्ता ही तेरे लिए गरीब का आ गया, मुनासिब रिश्ता है, बेटी तेरी जा मुकद्दर नसीब है। अम्मा ने शादी कर दी, शादी हो गई। बाकी जितने रिश्ते थे सब खुशहाल थे और वो बेटी गुर्बत में गई। कहा कि गुर्बत के उसने सिर्फ 2 साल, 2.25 साल देखे। 2 साल के बाद कुदरत का ऐसा कोई निजाम चला, उनके पास जायदाद, माल और चीजें खुद ब खुद ऐसे आना शुरू हो गए। उसका हिस्सा था, इसके पास आ गया, उसका निजाम था, इसके पास आ गया। फलां बंदे का माल था, माल मेरा है, कारोबार तेरा है, मिल के करते हैं। इसके पास असल में बख्त और मुकद्दर था। इसके यहां जो भी इसका नाम होता वहीं बरकत के दरवाजे खुल जाते। हत्ता के यहां तक कहा कि उस बेटी का नाम पर्ची में लिखकर उसके ऊपर टेप लगा के जिस कारोबार में रखते थे, उस कारोबार में बख्त लग जाते थे। और फिर अल्लाह ने एक निजाम देखा अनोखा। यूं ये बेटी गुर्बत से उरूज की तरफ जाती गई और वो जो उरूज वाले हैं वह जवाल की तरफ जाते गए। और कुदरत ने वो वक्त भी देखा, आसमान ने वो निजाम भी देखा और कुदरत ने वो वक्त भी दिया कि फिर यही बेटी थी अपने तमाम बहन भाइयों को देती थी और अभी भी देती है, और उनके घर का चूल्हा जलता और गर्म रहता है। हाँ, ये फैसले अर्शी हैं, इनका फर्शों से ताल्लुक है ही नहीं। ये अर्शी निजाम है जो चल रहा है। मौके मौजूद हैं, जैसे आज मौका है 11 और 12 की दरमियानी रात का, ये मौके मौजूद हैं। पर इन मौकों को बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। ये मौके हैं, ये मौके हैं, इनको ले लें। और कहा कि फिर उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखा जाता था, और उसका नाम कागज और पर्ची पे लिखकर वो बस बख्ती बख्त था, उसका नाम काफी था। ऊपर से फैसले हो चुके थे। औलाद की शादियों के लिए लोग कहते हैं इंतजार करो, 11 और 12 की दरमियानी रात आएगी, गिड़गिड़ा के तवज्जो ध्यान से नफिल पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, काम हो जाएगा, मसले हल हो जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आज कौन सा दिन है? बुध है। बुध की फजर से लेकर जुम्मे की मगरिब तक, बुध की फजर से लेकर जुम्मे की मगरिब तक एक अमल होता है, और इसमें एक सातें होती हैं, खासुल खास सातें होती हैं जो सिर्फ होती इन 3 दिनों में हैं, फजर से मगरिब तक। फजर बुध की, मगरिब जुमा की, सातें होती हैं, और इन सातों में ही एक निजाम चलता है। और जो इन सातों में वजीफा, तस्बीह, खास अमल कर ले, उसके लिए गैबी निजाम चलता है बरकत और बख्त का, बरकत और बख्त का, बरकत और बख्त का। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तूने कहा था कि कुत्ती ने बच्चे दिए हैं, कि जी 8 बच्चे दिए, कहां गए? कि सारे मर गए। कसरत जिंदगी में खत्म हो जाएगी, बरकत कभी खत्म नहीं होगी। बकरी 1 या 2 बच्चे देती है, बरकत है। कुत्ती कितने बच्चे देती है, बरकत नहीं। और कुत्ती खत्म हो जाती है,
कुत्ते के खत्म निजाम हो जाते हैं। अगर कुत्ते को अल्लाह ने करना होता तो सड़कों पे कुत्तों के रेवड़ होते जितने कुत्ते बच्चे देते हैं। और बकरी को अल्लाह ने बना फैला के दिखाया है, और एक पैगाम है कि बरकत ये है, कसरत वो है। कसरत खत्म हो जाती है, बरकत कभी खत्म नहीं होती। कसरत खत्म हो जाती है, बरकत कभी खत्म नहीं होती। या आज की रात बरकत समेटने की रात है, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, उनकी शादियों के लिए। रिश्ते नहीं हैं, लड़कियां भी बहुत हैं, लड़के भी बहुत हैं, मर्द भी बहुत हैं, औरतें भी बहुत हैं, रिश्ते नहीं हैं। फिर रिश्ते हैं तो मुझे उस दिन बंदा कहने लगा, सिर्फ हमारी ये तस्बीह खाने के जो यूनियन काउंसिल है, जिसमें तस्बीह खाना भी है लाहौर का, मुझे ये ग्राफ दिखाया, इतनी तलाकें रजिस्टर्ड हुई हैं। कहने लगा, आपने फलां का सुना था, उन्होंने इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए शादी पे लगाया, 1 महीना शादी नहीं चल सकी। ऊपर से फैसले नहीं हुए। पहले दिन से मां ने, बाप ने कहा, बेटी डिग्री, बेटी फलां लैंग्वेज, बेटी कंप्यूटर ट्यूटर, सब कुछ। मैं इसका इनकार नहीं करता। बेटी को यह नहीं कहा कि बेटी बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है, बरकत भी कोई चीज होती है, बख्त भी कोई चीज होती है, मुकद्दर भी कोई चीज होती है। वो तो पहले दिन नहीं बताया। पहले दिन उसको एहसास और इदराक ही नहीं है, ये भी कोई चीज होती है। ये इन रातों के अंदर ये चीजें मिलती हैं। इन रातों में इन चीजों की कदरदानी करने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, भिखारी बनने वाला, मोहताज बनने वाला फैसले करवाता है, फैसले करवाता है। 7 बहनें थीं, 7 बहनें थीं। एक भाई हुआ, एक भाई हुआ। एक साहब कहने लगे मेरी बहन कहती थी, जो मेरी तीसरी बहन थी, उस तीसरी बहन की तरफ मेरे वालिद ने एक दुर्वेश से पूछा कि इनके बख्त और मुकद्दर का मैं क्या करूं। कहा कि रमजान में एक रात आती है 11 और 12, उसमें 12 नफिल पढ़ लेना, गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांग लेना। कहा कि वो जो 2 पहले थीं वो तो बेचारी रुल गई, अल्फाज थे, उनका कुछ ना बचा। चूंकि नफिल पढ़े थे तीसरी में, नफिल पढ़े थे तीसरी में, और तीसरी के बाद जो रब ने सबको बख्त और भाग लगाए, बख्त और भाग लगाए, जो रब ने अता किया, जो रब ने करम किया, जो रब ने शफकत फरमाई, अनोखी दुनिया फिर कहा बन गई, हैरत अंगेज दुनिया बन गई, अनोखी दुनिया बन गई। किस्मत के नसीब और मुकद्दर अपने होते हैं, नसीब और किस्मत के मुकद्दर अपने होते हैं। रात की बात है, ये मेरे बच्चे बैठे सहरी में, एक दूसरे से सहरी भी खा रहे, छेड़छाड़ भी कर रहे, और मैं आप चुप करके बैठा सोच रहा था, अज़हकल्लाहु सिन्नका, सदा तुम्हारी मुस्कुराहटें बाकी रहें। तुम्हारा नसीब क्या है, तुम्हारा मुकद्दर क्या है? क्या जिंदगी भर फिर ऐसे इकट्ठा बैठना नसीब होगा? कैसे नसीब होगा? वो किस्मत वालों को नसीब होगा, वो मुकद्दर वालों को नसीब होगा। हाँ। और फिर दिल मेरे अल्लाह की कुदरत की तो 2 उंगलियों के दरमियान है। मेरा अल्लाह चाहे मिला दे, मेरा अल्लाह चाहे तोड़ दे। दिल उसके हुक्म में, दिल उसके अमर में, दिल उसकी इजाजत में है। इस दिल के ऊपर मखलूक के किसी फर्द का कोई कब्जा नहीं। वो चाहे दिलों को तोड़ दे, वो चाहे दिलों को मिला दे, वो उसका निजाम है। अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे, अर्शों से जब राब्ते हमारे हो जाएंगे,
پھر فرشوں پہ فیصلے ہمارے موافق ہوں گے، موافق ہوں گے۔ یہ عرشوں سے رابطے کی راتیں ہیں، یہ عرشوں سے رابطے کی راتیں ہیں، یہ عرشوں سے فیصلے کی راتیں ہیں، یہ عرشوں سے غیبی نظام لینے کے راستے ہیں، یہ عرشوں سے لے لیں، فیصلہ کروا لیں، لے لیں، فیصلہ کروا لیں، فیصلہ کروا لیں۔ دور دور سے بندے، پوری دور سے 3 دن 5 دن کا سفر کر کے میرے بندے میرے پردادا کے پاس آتے تھے۔ 1933 میں ان کا وصال ہے، اور ان سے آ کے عمل لیتے تھے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کا عمل لیتے تھے۔ ان کو بڑوں سے خاندانی اجازت تھی، عمل لیتے تھے۔ آج کی رات وہ عمل ہو جائے، آج کی رات وہ عمل ہو جائے، اور پھر نفل پڑھے جائیں، ہر بندہ انفرادی پڑھے گا، کا کمال ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک ہی پڑھنے والے کی وجہ سے سب کی قبول ہو جاتی ہے، اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں چند کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے قبول ہو۔ اس کے ذکر کی برکت سے جب فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، ان فرشتوں کا نور ایسا ہوتا ہے، اللہ ان کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے، نور ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہاں تک ایک واقعہ سن لیں، واقعہ سن لیں۔ شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار یہاں قریب ہے، ان کی خدمت میں ایک بندہ آیا، آ کے ان کی محفل میں بیٹھا، دعا مانگی، مسئلے تھے، آپ نے ذکر کرایا، تسبیح پڑھی، دعا کی۔ وہ کہنے لگا، کچھ عرصے کے بعد آیا، شیخ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ ایک جن کہنے لگا کہ میں اس محفل میں بیٹھا تھا، اس محفل میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک اللہ والا جن اور بھی تھا، وہ اس محفل میں بیٹھا تھا، اس کی وجہ سے تمام اہل محفل کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ تو شیخ سے پوچھا، شیخ ایسا تھا؟ کہا سچ کہتا ہے، جس نے تجھے یہ بات کہی اس نے تجھے اپنا یہ نام بتایا ہوگا؟ ہاں ہاں یہ نام بتایا۔ کہا یہ حلیہ بھی ہوگا؟ کہا یہی حلیہ ہے۔ اور کہا وہ سچ کہتا ہے، اہل محفل میں کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں۔ جب ذکر ہوا، کچھ نیک جنات بھی اس میں موجود تھے، ان نیک جنات میں ایک جن ایسا تھا جس کی عمر لمبی تھی، اور اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ساری اہل محفل کی ساری دعائیں قبول کر دیں۔ فرشتے آتے ہیں، جنات آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، صالحین آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عطاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مجھے ایک جوان کی بات یاد آئی، کہنے لگا میں آتا تھا تو آپ جب کہتے تھے کہ اگر آپ کی شادی نہیں بھی ہوئی تو بھی دعائیں مانگو، عمل کر لو، اللہ تمہارے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گا۔ یہ آج سے کوئی 22-25 سال پہلے کی بات اس نے بتائی، اس سے بھی پرانی۔ کہا اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی، میں دعا مانگ لیتا تھا، دل سے نہیں مانگتا تھا، بس ایسے مانگ لیتا تھا، ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی تو میرے بچوں کا۔ کہا آج پتا چلا کہ وہ دعائیں میرے بچوں کے کام آ رہی ہیں، اولاد جوان ہو گئی ہے، مسائل جوان ہو گئے ہیں۔ اماں فرماتی تھیں اولاد جوان ہو گئی، مسائل جوان ہو گئے، اب پتا چلا کہ اس کی مدد کی کتنی مجھے اشد ضرورت ہے، اس کی مدد کی مجھے کتنی اشد ضرورت ہے، کتنی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، کہنے لگے کہ ہم بازار میں گئے، جمعہ بازار لگتا تھا پہلے، بازار میں گئے تو ایک صاحب نے ہمیں آواز دی نام دے کر کہ مجھ سے کچھ نہیں خریدتے، تو ہم نے حیران ہوئے کہ نام کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگے آپ فلاں نہیں؟
बीवी का नाम लिया, आप फलां हैं? हाँ। कहा फलां को जानते थे? हाँ, हम तो उसकी शादी में आए थे। कह रहे मैं उन्हीं का बेटा हूं। हैं? उसने फल फ्रूट का ठेला लगाया हुआ था, कहा मुझसे कुछ खरीद लें, आज मेरी कोई चीज नहीं बिकी। और कहने लगे जब उसकी शादी हुई थी ना, इसके माँ बाप की, इसके वालिद की जब शादी हुई थी, उस शादी में हम भी थे। हर हर खानदान के लिए जो भी आए थे, चांदी के सेट थे बेहतरीन बने हुए, उन्हीं में खाना दिया गया और कहा जो खाना खाए सेट साथ ले जाए। कहां बख्त मिला था फिर उसको, कहां मुकद्दर मिला। और कहा कि आधे लाहौर की जायदाद उनकी थी, बड़ी बड़ी मुझे बकायदा नाम गिनवाए। लेकिन बेटा कहता है आज मुझसे थोड़ा सा सामान ले ले, आज मेरी कोई बिक्री सेल नहीं हुई, मुझे कुछ किसी ने कुछ खरीदा नहीं है। ये उसी की औलाद थी जिसके बाद की शादी पे जो आया था। इस जवान को उठाओ। जो आया था चांदी साथ ले गया था, साथ ले जाओ। उसी में खाया, उसी में पिया, और वो सारा सेट हर बंदा साथ ले गया, चांदी के बर्तन साथ ले गया। ये रातें हैं मनवाने की, ये रातें हैं लेने की, ये रातें हैं गिड़गिड़ाने की, ये रातें हैं उसके खजानों से अताएं, बख्शिश, बरकत, बख्त, नसीब, मुकद्दर, आफियत, ये लेने के रास्ते भी हैं, रातें भी हैं, ये लेने के, ये रास्ते हैं। इस पे कैसे तवज्जो होगी, इस पे कैसे तवज्जो होगी, और इसका अदब कैसे होगा, इस पे तवज्जो कैसे होगी और इस पे अदब कैसे होगा, अजमत कैसे होगी। जितना अदब होगा, जितनी अजमत होगी, उतना उसकी बरकत होगी। हमने 3 दिन पहले अल्लाह मगफिरली का वजीफा पढ़ा, 3 दिन पहले अभी रात गुजरा, या मुसब्बिबुल अस्बाब। आज खुशकिस्मत है, आज पहली रात है जिसमें 3 दिन हम मुस्तकिल पढ़ेंगे या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो। और जिनको नहीं आता वो सिर्फ या बदीयो या बदीयो या बदीयो पढ़ेंगे। ये वो ताकतवर अमल है, सिर्फ 12 तस्बीहां सुबह शाम 12 दिन पढ़ें, 12 दिन में फैसले हो जाते हैं। अगर नहीं हुए तेरे हक में फैसले, फिर तेरे करने में कमी है, 12 दिन और पढ़। नहीं हुए फिर 12 दिन और पढ़, वरना तेरे करने में कमी है। ये वो ताकतवर अमल है जिसकी इब्तिदा हम आज से कर रहे हैं। ये वो ताकतवर अमल है, और ये वो ताकतवर अमल है जिसकी ताकत और कुव्वत जब मजमा बैठ के पढ़ता है। ये बहुत गौर से सुनिएगा, जब मजमा बैठ के पढ़ता है। इसलिए फरमाया जिसके जनाजे में 40 आदमी हो, अल्लाह कहता है इसकी मगफरत कर दो। और फरमाया जिस महफिल में 70 अफराद हों, 70 अफराद हों, अल्लाह कहते हैं इनकी दुआएं कबूल कर लो। यहां तो कितने बेशुमार 70 बैठे हैं। जिस मजमे में जितना बढ़ता हुआ मजमा होता है, हर क्या दर्द गम, उनके आपस में कुढ़न वह ऐसी होती है कि रब के फैसले करीमी के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के शुरू होते हैं। अगर आप 12 तस्बीह सुबह शाम गिड़गिड़ा के पढ़ लें, मैं जिस तरतीब से बताऊं, 12 दिन पढ़ लें, बोलें। अगर पढ़े तो मैं तरतीब बताऊं, फिर वक्त निकाल के तवज्जो से डूब के, वक्त निकाल के तवज्जो से डूब के। हाँ, जो टूट के पढ़ता है, जो डूब के पढ़ता है, जो टूट के पढ़ता है, जो डूब के पढ़ता है, वो फैसले करवा लेता है। सुबह शाम अवल आखिर 12 दफा दरूद शरीफ, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदीयो। कितना वक्त लगता है, किसका क्या तजर्बा है? हाँ जी,
कितना वक्त लगता है इसके 12 दफा पढ़ने में? चालीस मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट, चलो 40 मिनट कर लेते हैं। तवज्जो वाले, ध्यान वाले, यकसुई वाले, गिड़गिड़ा के पढ़ने वाले, 40 दिन, 12 दिन करना है ये अमल, 12 दिन। खवातीन हर हाल में कर सकती हैं, 12 दिन ये अमल करना है। अवल आखिर दरूद पाक के साथ, फिर मैं हूं और अल्लाह हो और कुछ ना हो। यकसुई, ध्यान, तवज्जो। फिर इसकी इजाजत दूं? बोले, इसकी इजाजत दूं? दीवार पे जिस जोर से गेंद को मारते हैं उसी जोर से वापस आती है। दुनिया कहती है और बार बार कहती है कि आपका और आपकी नस्लों का इस निजाम का जितना सख्त तसव्वुर करते हैं, जितना सख्त तसव्वुर करते हैं, जितना सख्त तसव्वुर करते हैं हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत, आफियत का, उतना जल्दी हमारे काम बन जाते हैं। क्या ऐसा है? जिसके साथ इसका तजर्बा वह हाथ खड़ा करे। ये हाथ है, ये हाथ है, ऊंचा करें हाथ, ये हाथ है, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे। बस अगर नफा ज्यादा पाना है, खैर ज्यादा पानी है, तो इसकी बरकतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी रहमतें जो ऊपर वादे हैं, इसकी अताएं जो ऊपर वादे हैं, इसकी हिफाजत, किफायत, किफालत, उसको इस नीयत से पढ़ें, गैबी निजाम आपकी तरफ ऐसे लौट के आएगा सोच नहीं सकते। 12 दिन का फैसला कर लें। और आज हम बैठ के इसका चिल्ला करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस पे गिड़गिड़ाते हैं, इस पे भिखारी बनते हैं। ठीक है, तवज्जो करेंगे। हमारा छल्ले का अमल है। छल्ला आपने हाथ में लिया, आपके पास है, सिर्फ शापर से निकालना जरूरी नहीं, शापर से निकालना जरूरी नहीं, इसका तरीका लिखा हुआ है। और ये आखिरी साल है आज, आइंदा साल फिर ये अमल नहीं होगा। ये आखिरी साल का अमल है, आइंदा साल नहीं होगा। इसको हाथ में लेके दिल की गहराइयों से दिल में पढ़ेंगे, या वहाब, पढ़ें दिल से। बाकी इसका तरीका लिखा हुआ है आपके पास। हुरूफ तहज्जी का अमल रोजाना करते हैं, आपके पास कागज है, हुरूफ तहज्जी का नक्श है, और इस नक्श को रोज पुर करते हैं जाफरानी स्याही से। किस्मत वाले, नसीब वाले, मुकद्दर वाले इस अमल में मुसलसल शामिल हो रहे हैं। आज का हर्फ सीन है। कुरान में 6802 मरतबा ये हर्फ आया है, और इस हर्फ की बहुत ताकत और तासीर है। इस हर्फ के बहुत ज्यादा कमालात हैं। हर्फ सीन पढ़ते हुए इस नक्श को पुर करेंगे, अपनी मुरादें लिखें, अपनी आसें लिखें, अपनी उम्मीदें लिखें, लिखना शुरू करें। और फिर इसका हिस्सा फाड़ कर मटके में डालेंगे
اور جو باہرلے ملک والے ہیں وہ کسی آٹے میں ڈال کے جھیل دریا نہر میں ڈالیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بابرکت عمل ہے یہ۔ حروف، سارا قرآن انہی حروف سے مل کے تو بنا ہے، ساری دعائیں انہی حروف سے مل کے تو بنی ہیں، سارے اسماء حسنہ انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، سارے سلام انہی حروف سے تو مل کے بنے ہیں، اور سارے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی حروف سے مل کے بنے ہیں۔ اس ہر حرف میں طاقت، ہر حرف میں قوت، ہر حرف میں انوکھی تاثیر ہے اور انوکھا کمال ہے۔ آئیں گٹھلیوں والا عمل کرتے ہیں، اور یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس پہ سالہ سال سے لاکھوں کروڑوں دفعہ کلمہ، قل ہو اللہ، درود، اعمال، تسبیحات، ان گٹھلیوں کی برکت، ان گٹھلیوں کا گھر ہرگز نہ لے جانا، غلطی نہ کرنا، ان گٹھلیوں کو گھر ایک گٹھلی بھی ہرگز نہ لے جائیں، نہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، عمل الٹا نہ پڑ جائے۔ ان گٹھلیوں کو سامنے رکھیں گے بائیں ہاتھ میں، اور دائیں ہاتھ میں ہماری 15 لکیریں ہیں، 15 کو 3 دفعہ پڑھیں گے تو 45 ہو جائے گا، 45 بار ہم پڑھیں گے یا قادر ہو یا نافع ہو۔ کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ناکامی، کوئی خوف، کوئی امید، کوئی آس، کوئی دل کی فریاد، اس کا تصور کرتے ہوئے 45 بار پڑھیں گے، یا قادر ہو یا نافع ہو پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد ان گٹھلیوں کو ہاتھ میں لے کے، ہاتھ مل کے پورے بدن پہ اس کی برکت مل دیں گے۔ پڑھیں۔
माशाअल्लाह, मुबारक अमल है, बहुत बाबरकत अमल है, बहुत सआदत मंद अमल है, अल्लाह की रहमत से बहुत ही हैरत अंगेज अमल है। एक दुआ हर दफा पढ़ाई जाती है, हर 11 और 12 की दरमियानी रात में। नस्लें अल्लाह ने दे दी, फिर उन नस्लों को विलायत का इमाम, सखावत का इमाम, तवंगरी का इमाम, नूर का इमाम बनाने के लिए एक दुआ है, रब्बना हब लना, पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिम वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा कि आपके बेटे वली भी हैं, खुशहाल भी हैं, तवंगर भी हैं, मालदार भी हैं, नेक भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और दौलतमंद भी हैं, कि राज क्या है? कहा, कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। कोई नमाज ऐसी नहीं जिसकी रब्बे जालनी में, अत्तहियात में रब्बे जालनी के बाद मैंने ये दुआ ना पढ़ी हो। आज आपने मिल के पढ़ी और इंशाल्लाह आज के बाद पढ़ेंगे, रब्बे जालनी में दुआ पढ़ेंगे। आज मिल के पढ़ी, किसकी तासीर, कौन सी रात, कौन से लम्हे, कितना बड़ा मजमा, आप क्या लूट के जा रहे हैं, क्या बहारें बरकतें पाके जा रहे हैं, क्या रहमतें पाके जा रहे हैं। अभी हम बैठ के या बदिअल अजायब का वो जिक्र करेंगे जिसको सिर्फ 1200 दफा पढ़ें फैसले हो जाएं। सोचो आप भी कितने हजार, कितने लाख दफा पढ़ा जाएगा। पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। ये मजमा है, खवातीन की बिल्डिंग भरी हुई है, वो मजमा है। अल्लाह करे जिन्नात भी शायद होंगे, फरिश्ते भी हैं, उनके साथ मजमे में मिल बैठ के पढ़ना। क्या बरक़ात हैं, क्या समारात हैं, क्या अताएं हैं। मुजरिमाना हाज़री, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मुजरिम बना के पेश करना कि मौला मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं है। अल्लाह कहता है तूने अपने आप को मुजरिम कह दिया और मेरे नाम को पढ़ा, जा मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी नस्लों को आबाद और शाद कर दूंगा। हाँ, अल्लाह पाक के सामने आजिज़ी काम आती है, इनके सारी काम आती है। आजिज़ी काम आती है, इनके सारी काम आती है। मुजरिम बन के सर झुका के, मुजरिम बन के सर झुका के पढ़े अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर,
اللهم باسمك كهف كتمير 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 آمین آمین. پتاشو کا عمل ہے اور ایک خاص نقش ہے، چھوٹا سا ہے آپ کے پاس، چھوٹا سا نقش ہاتھ کا لکھا ہوا، بڑی جان مار کے، بڑی محنت کر کے، کوئی پرنٹنگ پریس سے نہیں نکلا ہوا، چھوٹا سا نقش ہے، اس میں ڈال کے پینا ہے ہو الشافی ہو الکافی ہو المافی. تسبیح خانہ کٹورے بھی دے، نقش بھی دے، پتاشے بھی دے، استقبال بھی کرے، کھانے بھی اللہ کھلائے، پینے بھی پلائے. واہ تسبیح خانہ واہ، تسبیح خانے نے تو میری آپ کی موجیں کرا دی ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں اتنی تو ماں بھی خیال نہیں کرتی جتنا آپ کرتے ہیں. وہ ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے میرا بستر بیت الخلا میں لگاؤ، یہاں اتنے صاف ستھرے بیت الخلا ہیں. ہاں، اور یہ خدمت کرنے والے کوئی کرائے کے نہیں ہیں. آپ میں جو ہم جیسے بیت الخلا صاف کر رہے ہیں، لنگر خانہ دھو رہے ہیں، آپ کے کھانے کھلا رہے ہیں، ساری رات آپ کے لیے سحریاں بنا رہے اور کھانا پینا. اللہ اکبر. مجھ سے کہنے لگے ابھی پرسوں ہمارا مشورہ تھا کہ جلیبی پتلی ہو، میں کہوں میلے والی واٹ والی جلیب ہوئے. یہ میلے والا بندہ سمجھے گا لینگویج، یہ برگر والے بندے نہیں سمجھ سکتے. ان کو کیا پتا، ان برگر والوں کو کیا پتا تھے میلے دی واٹ والی جلیب ہوندی کیا ہے. کہ وہ اصل کھانے کی ہوتی ہے. کہتے جلیبی پتلی کریں، میں کہ نہ کرنا. کہا پتلی کریں گے اونچی زیادہ ہوگی، زیادہ نظر آئے گی. میں کہ کوئی بات نہیں، خرچہ زیادہ ہو جائے کوئی حرج نہیں. وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اسی کی عطا ہے. نہ معلوم کس کی وجہ سے یہ لنگر چل رہا ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں. ہاں کہتے پتلی جلیب ہوتی نا، پتلی جلیب اٹھتی زیادہ ہے، اٹھتی زیادہ ہے، زیادہ نظر آتی ہے. اور یہ موٹی ہے، شیرہ بھی زیادہ پیتی ہے، خرچہ بھی زیادہ لیتی ہے. تو میرے مخلصین امت کہنے لگے پتلی کر دیں. میں کہ نا، یہ موٹی رہنے دیں. اللہ کرے ایسے یہ لنگر چلتے رہیں. ہاں سخی کے یہ لنگر چلتے رہیں، اور اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت اور ہر فتنے سے حفاظت. یہ پتاشے کا عمل نفل پڑھ کے پہلے پیئیں گے، پھر نفل پڑھیں گے، منہ میٹھا کر کے پھر نفل پڑھیں گے. یہ اس میں ڈال کے کھول کے اس کا پینا ہے، اور ہر گھونٹ پہ کھول کے ہر گھونٹ پہ ہو الشافی ہو الکافی ہو المافی. اور یہ کٹورا یہی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. اسی میں پتاشے لیتے جائیں گے، پانی ڈلواتے جائیں گے، اسی میں پانی لیتے جائیں گے، پتاشے لیتے جائیں گے اور پانی ڈلواتے جائیں گے. اسی میں پہلے نا بوڑھے دعائیں دیتے تھے. ان دعاؤں میں ایک یہ بھی تھا کہ پتاشے گھول گھول پی. یہ دعائیں دیتے تھے. آپ بوڑھوں سے پوچھئے گا، بڑے دعائیں دیتے کہ اللہ تجھے اتنا بخت دے، اتنی تونگری دے، اتنا رزق دے، تو پتاشے گھول گھول پی، پتاشے گھول گھول پی. کوئی مرے پاویں جویں موالی گول پتاشے پیوے. واہ مولا واہ. یہ مجھے اللہ اکبر. تعویذ ہمارے پاس مشاہداتی تحریریں آئی ہوئی ہیں.
मुखलिसीन ने लिखी हैं, बाहरले मुल्क की भी हैं, बहाल दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उन्होंने भी अपनी तहरीरें भेजी हैं। इन तहरीरों को सामने रख के दुआ वाला अमल करेंगे, इन सब की मुरादें पूरी होंगी, इन सब की आसें पूरी होंगी। और अगला तहरीरों का अमल 27 की रात को होगा। अपने तजर्बे, अपने मुशाहदे, कोई नक्श, कोई तावीज़ का तजर्बा, किसी दम का तजर्बा, कोई तजर्बे हैं तिब्बी रूहानी, तफसील से लिखें, साफ साफ लिखें। अगले जो होगा इंशाअल्लाह ताला, अगला जो होगा वो अमल इन तहरीरों का वो 27 की रात को होगा। हमेशा 2 अमल होते हैं, एक 11-12 की दरमियानी रात में, एक 27 की रात में। 27 की रात की अभी से तैयारी करें। और इनके तमाम जितने आपने छल्ले वाले ये चीज़ों के पैकेज हैं, इनका हदिया 40 रुपए से 400 रुपए तक अपने मकाम पे कहीं दे दीजिएगा। 40 रुपए से 400 रुपए तक इसका हदिया देना है, अपने मकाम पे आपने दे देना है। अब आप तरतीब सुन लें, जरा मेरी दरख्वास्त तरतीब सुन लें। अभी हमने बैठ के या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी पढ़ना है, और डूब के पढ़ना है, डूब के पढ़ना है, और टूट के पढ़ना है, और बहुत यकीन और ध्यान से पढ़ना है। और जिसको ये नहीं आता पूरा, तो वो पढ़े या बदियो। क्या पढ़ेगा? या बदियो। बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से, डूब के, टूट के, दर्द के साथ, गम के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ। जल्दी नहीं करनी, जल्दी नहीं करनी। उस करीम से मनवाना है, उस करीम से मनवाना है। दुनिया, रिज्क, इज्जत, सेहत, रूह, रूहानियत, अता, शिफा, शफकत, मेहरबानी, कलमा, कबर, वसी, नस्लों के लिए इज्जत, रिज्क, मुर्शिद, मुर्शिद की नस्लें, इस सारे निजाम के लिए आफियत, बरकत और अता। और दूसरी चीज मैंने अर्ज की है, 12 तस्बीहां सुबह शाम, 12 दफा दरूद पाक, ये 12 दिन के लिए अमल है। और फिर 12 दिन के बाद इसकी अलविदाई दुआ भी होगी। और ये 12 दिन कल से शुरू होंगे। 12 दिन आज का हमने पढ़ लिया, कल से मुराद सुबह शाम। सुबह जो वक्त भी आपको सहूलत हो, शाम जो वक्त भी आपको सहूलत हो, सुबह जो वक्त सहूलत हो, शाम जो वक्त सहूलत हो, ये तस्बीहां 12 दिन के बाद इसकी अलविदाई दुआ तस्बीह खाने में होगी। 12 दिन के बाद अब ये तहरीरें सामने, इन पे अमल होगा, इनके लिए दुआएं होंगी। और दरूद पाक पढ़ के हमने पढ़ना है, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो। टूट के पढ़ें, अल्लाह को अपना दर्द दिखाएं, रो के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, आंसू बहा के पढ़ें, और गिरिया और जारी से पढ़ें। जितना दर्द, जितना गिरिया, जितना जारी से पढ़ेंगे, उतना उसकी बारगाह में कबूलियत, मकबूलियत, महबूबियत, उतना उसकी बारगाह में अता और शफकत और मेहरबानी होगी। पढ़ना शुरू करें, तवज्जो है, ध्यान है, उससे लौ लगी हुई है। उसके दर्द में और उसके गम की कैफियतों में अपने आप को शामिल कर लिया, और गम में डूब गए, दर्द में डूब गए, इंशाअल्लाह डूब गए। तो फिर लाइटें बंद करें, दरूद पाक पढ़ के पढ़ना शुरू करें, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदियो, बदी अला जाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अला जाइब बिल। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी अल अजाइब बिल खैर
بالخير يا بديع بالخير يا بديع يا بديع الخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع عجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب خير يا بديع الله يا بديع بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع بالخير يا بديع يا بديع العجائب بالخير يا بديع العجائب يا بديع العجائب الله الله يا بديع يا بديع العجائب يا بديع يا يا بديع يا خير يا بديع يا بديع العجائب 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 الله يا بديع العجائب عجائب يا بديع يا بديع العجائب
डूब के पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, डूब के पढ़ें। कबूलियत की घड़ियां, कबूलियत की घड़ियां, कबूलियत की रातें, कबूलियत की रातें। अल्लाह अल्लाह
یا بدی العجائب 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 یا یا بدی العجائب 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 آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام اے سخی آقا اس آنے والے مجمع کی مرادیں پوری فرما مرادیں پوری فرما مرادیں پوری فرما آسیں امیدیں پوری فرما آسیں امیدیں پوری فرما اور مشکلیں حل فرما اور پریشانیاں دور فرما علت ذلت قلت سے بچا بن مانگے عطا فرما اولاد کے بخت نصیب مقدر عطا فرما غربت فقر سے بچا تنگ دستی سے بچا گناہوں کی زندگی سے بچا کالی راتوں کالے دل سے بچا کالے دل کالی دنیا سے بچا کالے جادو کالے لوگوں سے بچا کالے جادو کالے لوگوں سے بچا کالے جادو کالے لوگوں سے بچا رحمت کی بارش فرما عطا کی شفقت فرما اس رونے اور سسکنے والوں کو قبول فرما اس رونے اور سسکنے والوں کو قبول فرما ہماری دعائیں قبول فرما ہماری حاضری قبول فرما ہمارا بیٹھنا قبول فرما ہماری آمین قبول فرما ہماری آمین قبول فرما یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یا بدیع اللہ اس کلمات کی برکتوں سے ہمیں دنیا آخرت کی ساری مرادیں عطا فرما ساری مرادیں عطا فرما تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دے دے اہل لوگوں کو متوجہ فرما دے اللہ فتنے دور کر دے قیامت تک کے فتنوں سے بچا رحمت اور راحت عطا فرما آنے والے مجمع کی سب دعائیں قبول کر دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے ان سب کی مرادیں پوری فرما ان سب کی مرادیں پوری فرما ان سب کی مشکلیں حل فرما ان سب کی پریشانیاں دور فرما آمین کے موقع بار بار عطا فرما اور برکتیں بھی ہمیشہ عطا فرما آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب آپ حضرات کٹورے میں پتاشے لے کر اس کو پیئیں گے، هو الشافی هو الکافی هو المافی۔ اس کے بعد پھر 12 نفل پوری توجہ اور دھیان سے انفرادی گڑ گڑا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں جلدی سونے کی ترتیب اور جلدی اٹھنے کی ترتیب 12 نفل مستقل جو ہے وہ پڑھیں، 12 نفل مستقل پڑھیں
اور پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے پڑھیں. فوراً تشریف لے جائیں اور بہت خاموشی سے، بہت محبت پیار سے مل بیٹھ کے اوپر بیٹھیں گے. جگہ تھوڑی ہے، مجمع زیادہ ہے، ذرا محبت پیار سے، خاموشی سے، جتنی محبت پیار خاموشی ہوگی اتنا اس کی عطائیں ہوں گی. اور 12 تسبیحاں یا بدی لا جائے بالخیر یا بدی، صبح شام 12 دن کے لیے، صبح شام 12 دن کے لیے بہت سخت توجہ دھیان سے پڑھنی ہے، بہت سخت توجہ دھیان سے پڑھنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.